انیکس نہیں کروں گا. یعنی 2020 میں یہ ڈیل ہوئی ہے تو 2024 تک کی ڈیڈ لائن تھی. 2024 تک اس نے کہا تھا کہ 2020 سے 2024 تک میں اس کو انیکس نہیں کروں گا. تو 4 سال کا ٹائم مل گیا تھا عرب کنٹریز کو. اب عرب کنٹریز نے 4 سال کا ٹائم کیوں لیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا بات کو. یہ کہا جا رہا تھا کہ سعودی عربیہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا 2023 کے اینڈ میں یا 2024 کے شروع میں. یہ کہا جا رہا تھا کہ سعودی عربیہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور اپنے ریلیشن شپ نارمل کر لے گا 2023 کے اینڈ میں یا 2024 کے شروع میں. لیکن 2023 میں بہت امپورٹنٹ 2 چیزیں ہوئی ہیں. 2023 میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں, ذرا یاد رکھیے گا. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے اور ایران کے تعلقات نارملائز ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا چائنا کے وانگ ہی نے, جو ان کے فارن منسٹر ہیں, انہوں نے یہ کرائے تھے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری مور امپورٹنٹلی بات یہ ہو گئی کہ یاد رکھیے گا بڑے غور سے کہ 7 اکتوبر والا کھاتا کھل گیا. حماس نے جو ہے وہ اٹیک کر دیا اسرائیل پہ. اس کے بعد وہ جو سارا کام تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کھاتا فارغ ہو گیا, وہ ڈبل ڈوس ہو گیا, وہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ بالکل نکل گیا. اور جو سعودی عربیہ کرنا چاہ رہا تھا, مور امپورٹنٹلی تسلیم کرنا چاہتا سعودی اسرائیل کو, وہ نہیں کر سکا. سو یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی 2023 میں, جو کہ ہو سکتی تھی لیکن وہ نہیں ہوئی. بیکاز جو MBS تھے محمد بن سلمان کے, اگر آپ انٹرویو سنیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, لیکن کیونکہ یہ والا کھاتا کھل گیا 7 اکتوبر کا اور ایران کے اور سعودی عرب کے بھی تعلقات ایک دم سے سرپرائزنگلی بہتر ہو گئے, تو دیٹس وائی وہ چیز نہیں ہو سکی. اور اب یہ ڈر پایا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے اسرائیل جو ہے وہ آنے والے کچھ دنوں میں, کیونکہ اب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے اور آج شام یا کل صبح تک کیر سٹارمر UK کے اناؤنس کر دیں گے کہ وہ, کیونکہ وہ ہمارے پاس خبر آ چکی ہے کہ وہ اگلے 4-5 گھنٹے میں UK اناؤنس کر دے گا کہ وہ پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کرتا ہے. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن میں آپ کو پہلے ایک کھاتا کھول رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اگر اس طرح کی کوئی نیوز آئے کہ اگر اسرائیل نے خدا نہ خواستہ ویسٹ بینک کو انیکس کیا ہے, تو آپ کو آلریڈی یہ ساری ڈیٹیلز پتا ہوں اور آپ کو اتنا پرابلم نہ ہو چیزوں کو سمجھنے میں. اگلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی جو UAE کی فارن منسٹر ہے مس لانا نصر بے, انہوں نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. She also issued a stark warning that the UAE may withdraw from its peace agreement with Israel. انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے پیس ایگریمنٹ سے وڈرا کر لیں گی, وہ سپورٹ کریں گے پھر ہر اس ریزسٹنٹ موومنٹ کو جو کہ اسرائیل کے خلاف ایکشن لے گی. تو ایک طرح سے انہوں نے جو فارن منسٹر ہیں مس لانا نصر بی, جو UAE کی بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں, بڑی پاورفل پرسنالٹی ہیں, یہ ان کے انٹرویوز آپ سنیے گا, بہت بے باک بولتی ہیں, تو انہوں نے یہ بات کی. آگے یہ کہتی ہیں کہ the future of Palestine continues to be cornerstone of a peaceful future for Middle East. Annexation by Israel or Palestine land, if pursued, would not only close the doors of peace and integration, it would betray the very spirit of Abraham Accords. Israel's next move is uncertain, with options ranging from easing tensions with Arab states to advancing annexation. تو انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ہر جو موو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے. لیکن دیکھیے ہم چیزوں کو پریڈکٹیبل ایسے بناتے ہیں کیونکہ میں چیزوں کو بڑا کلوزلی اور میری ٹیم انالائز کرتی ہے. اس لیے اگر اسرائیل نے ویسٹ بینک کو انیکس کیا تو آپ لوگ سرپرائز نہ ہوئیے گا, کیونکہ یہ اس چیزیں اس طرف کی طرف جا رہی ہیں. اس لیے ہم کوئی بھی کام ہونے والا ہوتا ہے ہم آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتا دیتے ہیں کہ ایسا کھاتا کھلنے والا ہے. اب ہم کنڈیم کریں گے کہ اگر اسرائیل نے اس طرح کا کوئی کام کیا, پوری دنیا کرے گی, لیکن اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگلی بات سنیے گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ سعودی عربیہ اور UAE اور جتنی بھی میجر عرب کنٹریز ہیں, انہوں نے 2 گروپس کو اپوز کیا ہے. ایک حزب اللہ کو اپوز کیا انہوں نے, اور ایک جو ہے وہ انہوں نے اپوز کیا ہے حماس کو. اب سعودی عربیہ اور UAE نے کیا کارروائی کی ہے پچھلے دنوں, جس سے اسرائیل پھر بھی خوش نہیں ہوا. یہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تھا. The UAE and Saudi Arabia opposes Hamas but tie normalization with Israel to Palestinian statehood, complicating US efforts to widen the Abraham Accords. Analysts say that the UAE warnings are meant to pressure Israel. اب یاد رکھیے گا سعودی عربیہ اور اسرائیل نے پرومس کیا ہے, مور امپورٹنٹلی سعودی عربیہ اور UAE نے پرومس کیا تھا اسرائیل سے کہ ہم آپ کو ریکگنائز کر لیں گے, اپنے تعلقات بہتر کریں گے, لیکن آپ کو پہلے جو ہے وہ ویسٹ بینک کو اور غزہ کو ملا کے ایک 1967 یا اس کے بعد جو جتنا بھی علاقہ ہے اس کو آپ کو دینا پڑے گا, یا کسی نہ کسی فارم پہ آپ کو فلسطینی ریاست کو بنانا پڑے گا. اب مسئلہ یہ اس ٹائم کہ اسرائیل چاہتا ہی نہیں کہ فلسطینی ریاست بنے, وہ چاہتا ہی نہیں کہ فلسطینی ریاست بنے, کیونکہ وہ تگڑا ہے, وہ طاقتور ہے, اور وہاں پہ ایک طرح سے ایک نئی زائنسٹ لابی بھی ہے جو بہت زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی فلسطینی ریاست بنے, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر فلسطینی ریاست بن گئی تو ان کا اسٹیٹ ہوڈ خطرے میں ہے, جو کہ لاجیکل بات ہے کیونکہ اسرائیل بہت طاقتور ہے اور اس کو کسی چیز سے خطرہ تو نہیں ہونا چاہیے. بٹ اینی ویز اگلی بات کروں گا. اب مور امپورٹنٹلی
ایک यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इन साहब का नाम है मोहम्मद बहरून साहब। मोहम्मद बहरून साहब तो यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक मोर इंपॉर्टेंटली डिफेंस एनालिस्ट हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उन्होंने एक बात की कि द अब्राहम अकॉर्ड्स कैन नॉट बी एक्सटेंडेड विदाउट अ शिफ्ट इन इसराइली बिहेवियर। पीस विल नॉट कम फ्रॉम डोमिनेंस but from cooperation that requires Israel to act like a citizen of the region, not a occupying power। तो अब इन साहब ने जो मोहम्मद बहरून साहब जो यूएई के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक इसराइल इस तरह की बदमाशी करता रहेगा, अपने आप को डोमिनेट करता रहेगा रीजन में, तो कंट्रीज इनसिक्योर होंगे, वो अलाइंसेस बनाएंगे। अब देखें ना सऊदी अरब पाकिस्तान ने अलाइंस क्यों बनाया, क्योंकि सऊदी अरबिया को खतरा है कि कल को जब इसराइल ग्रेटर इसराइल की तरफ जाएगा तो उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा, तो पाकिस्तान को एक ऐसी मिलिट्री उसके पास होनी चाहिए जो इसराइल को रोके। सो दैट्स वाई। अब अगली बात होगा, अब कुछ सीनियर गल्फ ऑफिशियल्स ने इसराइली एक न्यूज़ साइट है, इसका नाम है वाई नेट। अब वाई नेट जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ साइट है इसराइल की, उसको कुछ सीनियर गल्फ ऑफिशियल्स ने इंपॉर्टेंट बात बताई है, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने ये बात की है इंटरव्यू देते हुए कि इफ़ इसराइल एनेक्सेस द वेस्ट बैंक ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल इंक्लूडिंग द मोस्ट सीरियस वन। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा, अगर वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लिया, हम लोग दोबारा मैप पे जाते हैं, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग दोबारा मैप पे जाते हैं। ओके, हियर वी गो अगेन। मैं आपको दोबारा मैप दिखा रहा हूँ, आप प्लीज़ देखिएगा मैप को। अगर फॉर एग्जांपल इसराइल ने जो है वो वेस्ट बैंक को एनेक्स कर ली, जो कि वो करना चाहता है आने में, जबकि जो कि वो कर लेगा, लीगली एनेक्स करने की कोशिश वो कर रहा है, हालांकि वो भी एक गलत चीज़ है, बट द थिंग इज़ दैट अगर इसराइल इस इलाके को एनेक्स करता है, ये बेसिकली रेड लाइन है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट की, पूरे के पूरे जो गल्फ अरब कंट्रीज हैं उनकी ये रेड लाइन है कि आपने वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करना। बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर हिपोथेटिकली वेस्ट बैंक को इसराइल एनेक्स कर लेता तो ये अरब कंट्रीज़ क्या कर सकते हैं, ये अरब कंट्रीज़ क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी आपने देखा एक हफ़्ता पहले 9 सितंबर को गालिबन 2:30-3 बजे दोपहर के टाइम इसराइल ने दोहा पर कतर पर एक स्ट्राइक की, जिसमें 6 लोग मारे गए, 5 हमास के लोग थे और एक जो पर्सन था वो सिक्योरिटी गार्ड था। कतर ने क्या किया, कंडेम किया, पूरे मिडिल ईस्ट ने कंडेम किया। तो सबसे सिवियर थिंग कंडेमनेशन ही है, या आप अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर दें, इससे ज़्यादा अरब कंट्रीज़ कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कहते हैं कि वो कट ऑफ कर देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वी ऑल आर रियलिस्टिक, और अगर हम रियलिस्टिक माइंडसेट को देखते हैं तो बहुत ताकतवर है इस टाइम इसराइल, और वो इतना कुछ कर चुका है। देखिए 70,000 लोगों का जेनोसाइड कोई छोटी बात नहीं है। 70,000 लोग मारे गए, पूरे का पूरी की पूरी बस्तियाँ उजाड़ दी गई हैं। लोग, मैं आज तस्वीरें देख रहा था, बच्चे भूखे हैं, उनकी जो हड्डियाँ हैं वो निकल चुकी हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि सो मच सीरियस थिंग, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बीमारियाँ फैल रही हैं, उसके बावजूद इसराइल नहीं रुक रहा, बिकॉज इट इज़ बीइंग वेरी वेरी पावरफुल। अमेरिका उसको प्रॉपर्ली बैकिंग करता है, और अब इवन ये जितने भी कंट्रीज़ हैं यूरोप के, जितने मर्जी हिपोक्रेसी कर लें कि हम फ़लस्तीनी रियासत को कबूल करते हैं, असल में वेपन्स तो सारे यही दे रहे हैं ना इसराइल को, बैकिंग तो सारी इसराइल की यही कर रहे हैं, तो इसलिए इसराइल इतना तगड़ा है। सो कंडेमनेशन के अलावा कुछ भी नहीं होगा, इसराइल ने एनेक्सेशन करना होगा वो कर लेगा। अब बात सुनिएगा, मैं आपको एक मोर इंपॉर्टेंट इसराइल की एक डिफेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक मिनिस्टर हैं, इन साहब का नाम है बेजियल स्मोत्रिक साहब जो हैं, ये अभी पिछले दिनों भारत भी आए हुए थे, इन्होंने कोई डिफेंस की डील साइन भी की, मैंने वीडियो भी बनाई थी। बेजियल स्मोत्रिक एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट फार राइट मिनिस्टर हैं, और ये हमेशा बात करते हैं कि पूरे के पूरे फ़लस्तीन को खींच लो, पूरे के पूरे फ़लस्तीन को पै जाओ, तो फिर पूरे के पूरे फ़लस्तीन को एनेक्स कर लो, वो ये बात करते हैं। और इस टाइम जितनी भी गवर्नमेंट के लोग हैं, नेतन्याहू साहब से लेकर जो टॉप ब्रास से लेकर जो नीचे का इस टाइम तबका है, वो सारे का सारा इस टाइम चाहता है कि पूरे के पूरे वेस्ट बैंक को और गजा को एनेक्स कर लिया जाए। अब ये बेजियल स्मोत्रिक जो इसराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात की। इन्होंने कहा है कि वी डोंट डू हाफ और अ क्वार्टर ऑफ द जॉब। Israeli annexation must be applied to the entire territory simply because this is our land. Shortly afterward, he also said that he plans to annex 82% of the West Bank, saying that maximum land, maximum Arab. अब इस बात को सुनिएगा कि क्या बात की है, जरा समझिएगा। इन साहब ने ये बात की है, मैं मैप भी दिखा दूं, इन साहब ने ये बात की है कि हमें आधी जॉब नहीं करनी, क्वार्टर 25% जॉब नहीं करनी, हमें अब पूरी जॉब करनी है। पूरी जॉब क्या है, पूरे के पूरे फ़लस्तीन को अपने अंदर एनेक्स कर लो। अब ये इन साहब ने क्या बात की मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब समझिएगा बात को, और मैप को भी देखिएगा। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। ये इस टाइम मैप है, अगर कोई फ़लस्तीनी रियासत बनेगी तो इस तरह बनेगी। ये वेस्ट बैंक है और ये गज़ा है। अगर कोई फ़लस्तीनी रियासत बनेगी तो ये फ़लस्तीन होगा, पैलेस्टीन होगा। ओके,
अब इन साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जो मिनिस्टर, इन्होंने कहा कि हमें 25% काम नहीं करना, हमें ये भी फारिग करना है, ये भी फारिग करना है, इन दोनों को जम करके हमें पूरे के पूरे इसराइल के अंदर लेकर आना है, और हमें मोर लैंड मतलब मोर अरब्स, यानी कहने का मतलब है ज़्यादा लैंड का मतलब है ज़्यादा अरब कंट्रीज़ के लैंड। वो टॉन्ट कर रहे हैं अरब कंट्रीज़ को कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हम तगड़े हैं, हम और ज़्यादा लैंड को एक्सपैंड कर सकते हैं। अभी आपको पता है सीरिया में भी बहुत सारा इलाका भी कैप्चर किया हुआ है, माउंट हरमन तक इस टाइम फौज गई हुई है जो कि लबनान को और सीरिया को देख सकती है, मैंने आपको मैप में भी दिखाया था। सो द थिंग इज़ दैट इसराइल कमिटेड है, इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ डेज। मैं नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते ऐसा हो, क्योंकि हर कंट्री का ये राइट है कि उसके लोगों को उसका हक मिला जाए। लोग मरते हैं, वी ऑल कंडेम दिस, बट ये होने वाला है, ये होगा। इसराइल को कोई अब रोक नहीं पा रहा। अरब कंट्रीज़ अपने अब डिफेंस की बात करें, देखिए ना, अरब कंट्रीज़ पहले बात करते थे कि वो अपना लैंड वापस लें जो फ़लस्तीन में उनका छिन गया सारा। अब वो बात करें अपने दिफा की, क्योंकि उनको डर है कि कल को कहीं खाता उनके इर्द गिर्द भी ना खुल जाए, और अब आपको और अलाइंसेस नजर आएंगे मिडिल ईस्ट में, ताकि कल को अगर इसराइल अटैक करता तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। अब इस सारे मामले के जो रिजल्ट्स हैं वो मैं किन चीज़ों पे पहुंचा हूँ, और जो मैं बातें करता हूँ, मैं मुझे कोई जो है वो कोई गायबी बात नहीं आती। बात यह है कि मैं और मेरी टीम जो है वो एनालाइज करती है चीज़ों को, हम न्यूज़ को देखते हैं, हम तकरीबन 200-300 सोर्सेज को देखते हैं एक न्यूज़ को ब्रेक करने के लिए, तब जाके हम कोई एनालिसिस देते हैं, तब जाके मैं आपको वो चीज़ करता हूँ। अब मैं क्या प्रिडिक्ट कर रहा हूँ आने वाले में, देखिए एनेक्सेशन होगी, वेस्ट बैंक की होगी, गजा की नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि वेस्ट बैंक क्योंकि इसराइल के कंट्रोल में पिछले 50 साल से, तो वेस्ट बैंक बड़ा डेवलप हो चुका है, नो डाउट। वहाँ की रोड्स, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस बड़े डेवलप हैं। महमूद अब्बास साहब इंजॉय द लाइफ कर रहे हैं, उनकी आपने सेहत देखी, कितनी अच्छी सेहत है उनकी। तो वहाँ पे जो वेस्ट बैंक के लोग हैं उनके लिए मामलात कदरे बेहतर है, वहाँ पे सिक्योरिटी जो है, जी वनीश भाई, दिस इज़ लाइव एनीवेज, उनकी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है। लेकिन जहाँ पे गजा है वहाँ पे हमास पिछले 15 साल से, 20 साल से, 25 बल्कि 20 साल से बैठा हुआ है, तो वहाँ पे हालात वर्स हैं। तो इसराइल कभी भी उस जगह को एनेक्स नहीं करेगा जहाँ पे उसको दोबारा से रीबिल्डिंग करनी पड़े। तो वेस्ट बैंक उसके लिए इस टाइम अच्छा ठिकाना है, जो कुछ इलाकों को वो कैप्चर कर सकता है, एनेक्स कर सकता है। अब मुझे क्या लगता है कौन कौन से इलाकों को इसराइल एनेक्स कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ, ज़रा सुनिएगा। जो कि गलत बात है, वी ऑल कंडेम दिस, बट ये पावर प्ले है। अब पावर प्ले में जो तगड़ा होता है अनफॉर्चुनेटली उसकी बात मानी जाती है। अब मैं आपको दोबारा से मैप दिखा रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा, मैं आपको दोबारा मैप दिखा रहा हूँ, थैंक यू। ओके, ज़रा समझिएगा। अब अगर ये सारा इलाका मैंने आपको दिखा दिया, ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, समझिए एक तरह से आप अंडरस्टैंड करते हैं कि सारा का सारा इलाका जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि सारा का सारा इलाका जो है ये वेस्ट बैंक है। अब इसराइल कर क्या सकता है, इसराइल इन सारे इलाकों को एनेक्स कर सकता है, जो कि अभी एरिया सी के इलाके। एरिया सी के इलाके कौन से हैं, जो आप देख रहे हैं ये वाले, ये एक डार्क ऑरेंज है, ये एक लाइट ऑरेंज है। इन लाइट ऑरेंज इलाकों को इसराइल कह सकता है, मैं इनको एनेक्स कर रहा हूँ इस इलाके को। और इसके अलावा जो जेरूशलम का इलाका है, मेरे पास एक और मैप भी है, कहाँ गया वो, ओके हाँ ये वाला मैप, जो जेरूशलम का इलाका है, इस सारे इलाके को भी इसराइल एनेक्स कर सकता है और कह सकता है कि ये मेरा इलाका है, जो कि जेरूशलम ईस्ट है और वेस्ट है। कुछ इलाका जेरूशलम का जो है वो इस टाइम भी पैलेस्टीनियंस के पास है, जो कि एरिया ए या एरिया बी है, और कुछ एरिया सी का इलाका जो है वो इसराइलीज़ के पास है, जो कि जेरूशलम के पास है। तो द थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे इलाकों को इसराइल आने वाले दिनों में इन आसपास के इलाकों को, जो इलाके आप देख रहे हैं इस टाइम, जो ये वाले इलाके हैं ब्लू वाले, इनको एनेक्स करके कह सकता है कि ये इलाके अब मेरे हैं और मेरी यहाँ पर सॉवरेंटी है। और अरब कंट्रीज़ क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ यही कर सकते हैं, वो बैठ के देख सकते हैं और वो इसको कंडेम कर सकते हैं। एक बात ही। अगली बात ये कि आप अब्राहम अकॉर्ड्स में कोई और कंट्री नहीं जाएगा, ख़ासतौर पे अरब कंट्रीज़ नहीं जाएंगे अब्राहम अकॉर्ड्स में। उसकी वजह यह है कि अरब कंट्रीज़ को अपना डर लगना शुरू हो गया कि कल को कहीं इसराइल हम पे स्ट्राइक ना कर दे। अब देखिए इसराइल ने दोहा पे स्ट्राइक की, इसका मतलब है इसराइल जॉर्डन पे और भी कंट्रीज़ पे स्ट्राइक कर सकता है, जिससे उनको एक खतरा पैदा हो गया। इसलिए तो पाकिस्तान बीच में आया ना कि पाकिस्तान डिफेंड करेगा। सो दैट्स द थिंग। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इम्पैक्ट जो है वो अब्राहम अकॉर्ड्स पे ऑलरेडी हो चुका है। अरब कंट्रीज़ के अंदर गुस्सा पाया जा रहा है, खासतौर पे उन कंट्रीज़ के अंदर जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया इसराइल को इस मामले में, क्योंकि वो ईरान के अगेंस्ट था। बट अब उनके अंदर भी जो है वो डर आना शुरू हो गया है कि आने वाले टाइम पे कहीं इसराइल जो है वो उन पर भी खाता ना खोल। तो ये सारी चीज़ें अभी वर्ष की तरफ जा रही हैं। आज आई थिंक अभी या 1-2 घंटे के बाद केयर स्टारमर यूके के अनाउंस करने वाले हैं कि वेस्ट बैंक या और गज़ा को जो है वो एक पैलेस्टीनियन स्टेट हुड मानते हैं। अगर वो इन्होंने ये कर दिया तो हो सकता है कि इसराइल और